everyone, how are you doing? Hope everything is fine. In our last session, we completed our chapter topic noun and its kinds, and today I am going to explain you about gender and number. Hope you understand well noun and its kinds, and if you have any problem then ask to me. And today I am going to explain you about gender and number, and watch full video, learn about them, and then do exercise. Okay, so let's start. Gender. Living things are categorized as either male or female. लिविंग थिंग्स कैटेगराइज होते हैं मेल और फीमेल में. ठीक है ना. तो मेल इज फॉर मस्कुलाइन जेंडर एंड फीमेल फॉर फेमिनाइन जेंडर. जितने भी मेल हैं जैसे बॉय, मैन, कॉक, ये सारे किस में आते हैं? मस्कुलाइन में. और जितने भी फीमेल हैं लाइक गर्ल, वुमेन, हैन, ये सब फेमिनाइन जेंडर में आते हैं. नाउ आई वांट टू टेल यू दैट since your class first you are studying that there are two types of gender, masculine and feminine, but now you are in senior class, so there are two more kinds of gender, common gender and neuter gender. You will study in this class about and more detail in next class. We use different pronouns to refer to masculine and feminine gender. pronouns का use भी होता है मस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए. जैसे ही, तो ही इज़ अ बॉय, सो ही रिफर्स टू मेल. शी इज़ अ गर्ल, सो शी रिफर्स टू फीमेल. सो दीज आर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. नाउ कम टू द कॉमन जेंडर. व्हाट आर कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर आर कॉमन वर्ड्स और कॉमन नाउन्स यूज्ड फॉर मेल और फीमेल. ऐसे कॉमन वर्ड्स या कॉमन नाउन्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमनली यूज होते हैं कम्स इन कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड. चाइल्ड मे बी मेल और चाइल्ड मे बी फीमेल, है ना. चाइल्ड एक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो वो किस में आएगा? कॉमन जेंडर में. इसी तरह से टीचर. टीचर एक मेल भी हो सकता है, टीचर एक फीमेल भी हो सकता है. उसके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं टीचर, तो वो कॉमन जेंडर में आएगा. डॉक्टर. डॉक्टर मे बी मेल और डॉक्टर मे बी फीमेल. ठीक है ना. तो ये कॉमन वर्ड है और ये कॉमन जेंडर में आता है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमनली वर्ड यूज़ होता है. तो ऐसे कॉमन वर्ड्स या कॉमन नाउन्स जो मेल और फीमेल के लिए कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर में रखते हैं. नेक्स्ट है अपना न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी होगी, ईवीएस में पढ़ा होगा व्हाट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए को न्यूटर जेंडर में रखा जाता है, उस कैटेगरी में रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल बुक, टेबल, चेयर, है ना. इसी तरह से गन, clock, these will come in neuter gender. I have taken the screenshot of your book, so you have to just read all these rules, and main 4 I explained you, and I'll give you exercise for that, so you have to do. Okay, so here are some examples regarding masculine and feminine gender. Again I am explaining you masculine for male and feminine for female. So examples: men, woman, bull, cow. Okay, these are the examples of common and neuter gender. Here are common: children and teachers. It may be male or female also. And neuter gender, here clock and gun, this will come in neuter gender. So I think it is clear that what are common gender and what are neuter gender. Common genders are used for commonly male or female for both, and neuter gender for non living things. And masculine and feminine already
I explained that male for masculine and female for feminine. So our next topic is singular and plural noun means number. Numbers are two types in English grammar, singular and plural. Okay, singular noun names one means जो things, place या कोई भी चीज़ वन होती है उसके लिए singular noun and plural noun for more than one. Okay. Plural nouns, singular to plural change करने के कुछ rules होते हैं, so we have to follow this. First, look at definition of plural noun. A plural noun names more than one person, place, animals, thing or any idea. More than one जो होते हैं वो plural nouns होते हैं. And now there are some rules. Add s. s हम किस में लगाएंगे? जो कॉमन जो नाउन्स होती हैं उनके पीछे. ड्रीम तो ड्रीम्स, फ्लावर फ्लावर्स, शू शूज़. ओके, नाउ ऐड ई एस. ई एस किसके पीछे लगेगा? तो ऐसी नाउन्स या ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या फिर एस, ओ आता हो तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे? ई एस. तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएंगे. जैसे लंच तो लंचेस, फ्लैश फ्लैशेस, मेस मेसेस, बॉक्स बॉक्सेस. और अगर बस और अगर इसके आगे हम ई एस लगा दें तो वो बसेस हो गया. मैंगो, मैंगो के लास्ट में क्या आता है? ओ आता है. अगर ये मैंगो सिंगुलर है और अगर हमने उसके आगे ई एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया और वो क्या हो गया? मैंगोज. ये इसमें नहीं दे रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट, ड्रॉप द वाई, एड आई ई एस. थर्ड रूल ये हुआ कि ऐसे लेटर्स ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में वाई आता है, ठीक है, तो उनके आगे अगर उनको ड्रॉप करके और उनके आगे हम आई ई एस लगा दें तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? प्लूरल नाउन में. लेकिन इसके लिए भी एक सिचुएशन है. वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना बहुत ज़रूरी है. अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को ड्रॉप करके आई ई एस लगाएंगे. जैसे बेबी तो वाई से पहले बी एक कॉन्सोनेंट है तो हमने वाई को ड्रॉप कर दिया और आई ई एस लगा दिया. ऐसे ही फैमिली तो फैमिली में वाई से पहले एल आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर वाई को ड्रॉप करके आई ई एस लगा दिया. स्टोरी में भी वाई से पहले आर एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने वाई को ड्रॉप करके आई ई एस लगा दिया. ठीक है. अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बॉय, दिख रहा है बॉय, लेकिन वाई से पहले ओ एक वॉवेल है तो आप इस वाई को हटा के आई ई एस नहीं लगा सकते. इसके आगे आपको एस ही लगाना पड़ेगा. ये सिचुएशन है वाई को ड्रॉप करने की और नहीं करने की. वाई को ड्रॉप कहाँ करोगे? जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए. अगर वाई से पहले वोवेल आता है तो आप वाई को ड्रॉप करके आई ई एस नहीं लगाएंगे, वहाँ ओनली एस लगेगा. जैसे मंकी तो मंकी एम ओ एन के ई वाई मंकी, तो वाई से पहले ई एक वोवेल आ रहा है सो यू विल नॉट drop y and place ies. You have to just put s there. Okay. The next rule is drop the f and add ves. So the words which are ending with f and fe, what you have to do, you have to drop f and you have to put ves there, so it will be changed in plural noun. ऐसे वर्ड्स या ऐसी नाउन जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आता है उन्हें हम ड्रॉप करेंगे, वहाँ से रिमूव करेंगे और वहाँ वी ई एस लिखेंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ इरेगुलर नाउन्स हैं. दे डू नॉट फॉलो ऑफ चेंजिंग द रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल. आपको इन्हें लर्न करना है. फॉर एग्जाम्पल माउस सिंगुलर तो इसका प्लूरल माइस हो गया. अब ऐसे नहीं कि आप इसके आगे एस लगा दो और उसे माउसेस कर दो. नो,
नेक्स्ट men, men. So what is the plural of men? Men. men हो गया. Foot, feet. Person, what is the plural of person? People. And the plural of deer, also deer. Deer का plural deer होता है. इसी तरह से SHEEP, ship. ship का plural भी ship ही होता है. Child, the plural of child is children. Tooth, teeth. Woman, women. Goose, geese. And fish का plural भी क्या होता है? Fish. So these are some rules and these are some irregular nouns. One more thing, कुछ exceptionals होती हैं nouns जिनमें आपको उनको लर्न ही करना है. उनके पीछे कोई रूल्स नहीं है. जैसे मैंने लिखा रूफ, ROOF, रूफ. नाउ यू विल थिंक दैट कि इसके पीछे F आ रहा है तो हम इसको हटा के VES लगा दें. मोस्टली बच्चे करते हैं, बट रूफ के आगे आपको S ही लगाना है और वो रूफ से रूफ्स में चेंज हो जाएगा. इसी तरह से शेफ़, शेफ़ के आगे आपको एस ही लगाना है तो वो शेफ़ से शेफ्स में चेंज होगा. सो दीज आर सम सिंगुलर टू प्लूरल नाउन एंड learn and do exercise. Okay, hope you understand. Watch full video and learn about the rules of genders and numbers and do exercise which I'll give you. And again I am telling you, if you have any problem, just ask to me and send me work timely. Okay, bye, take care.